technique you will use, you will find a huge difference in your career, right? कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. You are going in industry right now because you are doing PGDM program, right? Great. It is the best possible program for any person who wants to enter corporate. Because ये program design ही ऐसे होता है कि corporate की requirement क्या है. आप समझ रहे हैं इस बात को? It is very practical program. और मैं आपको बताऊँ कि आज के टाइम पे I am training and personally coaching a person who is the MD of a 5,000 crores company, right? And he knows that what exactly is the importance of mind. इसलिए वो मेरे साथ एक personal coaching session को ले रहे हैं. तो आप समझ सकते हो कि if the person of that level has inclination towards this science, तो आपके लिए कितना ज़्यादा important हो सकता है, right? तो सब इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ कनेक्ट होंगे? चलो ग्रेट, बहुत ही बढ़िया. टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट माइंड एंड मेमोरी. जिस साइंस पे मैं लास्ट 10 इयर्स से वर्क कर रहा हूँ, दैट इज NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. NLP के बारे में आपने सुना है किसी ने? अच्छा, कुछ लोगों ने सुना है. कोई बताएगा व्हाट इज NLP? चलो कोई बात नहीं, आई विल गिव द आंसर. NLP is created from 3 terms. N means neuro means your mind. L means language means linguistic. और आपकी लैंग्वेज दो तरह की होती है. One is your verbal language, यानी कि आप जो बोल के बात करते हैं, and the second is your non-verbal language, यानी कि body language, right? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने आ रहा हूँ और आपसे बात करने के पहले मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसे होता है, ऑब्जर्व करें. Today we will talk about mind and memory. कितने लोग सुनेंगे? कोई सुनेगा? No, because the communication is not going on just with the verbal communication. It is going on with the body language also, with the physiology also. Hello. Am I audible? Yes. This makes me more comfortable because my hands are free now. मुझे एक जगह स्टैटिक होने की जरूरत नहीं है. Now I can communicate. Now I can interact better. तो चलो मैं बात कर रहा था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की. N means neuro means mind. L means language means both your verbal language and your non-verbal language. आपकी body language, आपकी physiology, आपका facial expression भी communicate करता है. आपको पता है या नहीं? आपका दोस्त आपका चेहरा देख के बता देता है कि आज कुछ परेशान दिख रहे हो, या अगर आप किसी बात पे बहुत खुश हैं तो वो आपके चेहरे को देख के ही ऑब्जर्व कर लेता है. आपको बोलने की जरूरत नहीं होती. That means communication is going on through body language also. And the third is programming. Programming means set of steps or instructions which create a particular result. आप समझ रहे हैं कि आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आता है तो there is a programming on back of the mind which is resulting in that anger. अगर आपको किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, that means there is a programming inside your mind which is making you confident. Yes. अभी सुबह हो रही है और आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो have some energy, right? मैं बिना माइक के भी बात करूं तो पूरे सेमिनार हॉल में मेरी आवाज जा सकती है, तो आपकी तो बिल्कुल आ सकती है, right? चलो गुड. तो मैं आपको बता रहा था NLP के बारे में. NLP क्या है? बेसिकली आप जानते हैं हम सबके पास ब्रेन है. You all have brain. And there is a difference between brain and mind. आपको पता है, सुना है इसके बारे में कभी? Yes sir. Okay, कोई मुझे बताएगा what is the difference between brain and mind? Sir, so brain is the structure and mind is the feeling of feelings and all other activities. So that your brain can work. Wow, what's your good name? Prabal. Big round of applause for Prabal. Thank you. बहुत बढ़िया. Wonderful definition. समझो बात को. We all are born with the same neurology. हम सब इस दुनिया में आते हैं एक जैसी न्यूरोलॉजी के साथ, यानी कि हमारा ब्रेन सबका लगभग कैसा है? सेम है, सिमिलर है, एक जैसा है. प्रोवाइडेड अगर कोई चोट लग गई, कुछ ऐसा चैलेंज आ गया, कोई जिसे कहते हैं ना हाई फीवर बचपन में आ गया, जिससे ब्रेन की न्यूरोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, तो बात अलग है. अदरवाइज वी ऑल आर born with the same neurology. फिर एक बात बताओ, अगर बिल गेट्स भी उसी ब्रेन के साथ इस दुनिया में आता है और दूसरे लोग भी इसी ब्रेन के साथ आते हैं, तो हर कोई उस लेवल तक क्यों नहीं जाता? हाँ, गुड, एग्जैक्टली. व्हाट्स योर नेम? योगेश. योगेश के लिए क्लैप करेंगे. बहुत ही बढ़िया. आप सब जो
समझो इस बात को, बहुत ही अच्छा आंसर उन्होंने दिया कि हाउ एग्जैक्टली द पर्सन इज यूजिंग हिज और हर माइंड। क्योंकि ब्रेन के साथ हम इस दुनिया में आते हैं, लेकिन माइंड कब डेवलप होता है? माइंड डेवलप होता है जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं। एवरी टाइम योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम्ड। आपको पता है आपका माइंड हर मोमेंट पे प्रोग्राम हो रहा है। राइट नाउ आल्सो जब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं जो लोग मेरे साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं उनका माइंड डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम हो रहा है। जो कहीं और देख रहे हैं उनका माइंड कहीं और किसी और डायरेक्शन किसी डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम हो रहा है। सो राइट नाउ आल्सो योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम्ड। एवरी मोमेंट दिस इज हैपनिंग। तो कितना अच्छा हो कि if you learn the tools and techniques that how exactly you can take control of this power, take control of your mind and program your mind accordingly। ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? कितने लोगों को लगता है अच्छा रहेगा? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो आज मैं आपको बताऊं, आज मैं बात करने वाला हूं कि how exactly you can use your mind in a way so that your memory becomes very strong, ताकि आपकी मेमोरी की जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सको। अब मुझे सच में बताना, कॉन्सेप्ट्स को समझना ज्यादा मुश्किल होता है या याद रखना ज्यादा मुश्किल होता है एग्जाम में? याद रखना। That means you have got wonderful teachers throughout your life। आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं किसी कॉन्सेप्ट को। किसी एक कॉन्सेप्ट को क्लास में 45 मिनट्स का लेक्चर होता है और 45 मिनट्स तक एक्सप्लेन किया जाता है इन अ वंडरफुल वे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज को आंसर किया जाता है, होता है या नहीं ऐसा? और वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वही आंसर याद रहता है या भूल जाता है? कई बार भूल जाता है। और मैं आपको बताऊं क्या होता है, मजेदार चीज एक होती है, आप एग्जामिनेशन में जाने के जस्ट पहले अपनी नोट्स को रिवाइज कर रहे होते हैं फटाफट, राइट? और किसी आंसर को आपने उस टाइम पे भी रिवाइज किया और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, आपने क्वेश्चन पेपर ओपन किया, वो क्वेश्चन वहां पे है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? द आंसर इज मिसिंग। और वो आंसर आप बहुत सोचते हो कि याद आ जाए, लेकिन याद कई बार नहीं आता। याद कब आता है? as soon as you submit your copy। होता है या नहीं होता है? तो एक बात बताओ, वो आंसर क्या माइंड के अंदर था या माइंड से नहीं इरेज हो गया था? माइंड के अंदर था, यस, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, राइट? ऐसा सिर्फ आंसर्स के केस में नहीं होता। आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी इंसान से आप मिले, you look at the face, you recognize the person, but the name is missing। और आप बहुत टाइम तक सोचते रहते हो इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, और वो याद नहीं आता। याद कब आता है? जब आप उसको नाम को याद करना छोड़ देते हो, उसके बाद suddenly the name pops up in your mind। होता है या नहीं होता है? That means the name was already inside your mind, but you were not able to access it। तो आप जानना चाहोगे कि ये कैसे ऐसा कर सकते हो आप, so that you can be able to access the content whatever you have learned। जानना चाहोगे आप इन चीजों के बारे में? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो एक छोटे से डिमॉन्स्ट्रेशन से शुरू करेंगे so that you can know कि जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ ये वर्क भी करती हैं, ये सिर्फ बातें नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आज YouTube और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत सारी बातों से और मोटिवेशनल टॉक से भरा हुआ है, लेकिन उसमें अप्लाई करने के लिए हमें टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं मिलते कई बार। होता है या नहीं? तो आप सीखना चाहोगे ना टूल्स एंड टेक्निक्स? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो इसके लिए एक छोटा सा गेम प्ले करेंगे। आप लोग रेडी हैं गेम के लिए? राइट? इस गेम में क्या करेंगे? वी विल बिल्ड अ लिस्ट, एक छोटी सी लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे और उस लिस्ट को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, राइट? देखो क्या होता है, आप मार्केट जाते हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, मम्मी पापा कोई ना कोई आपको कुछ बताता है कि ये सारी चीजें आपको मार्केट से लेके आनी है। आप जाते हैं मार्केट सामान लेने, सपोज करो आपने 10-15 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई और आपने ही बनाई, और उसके बाद आप मार्केट गए और अचानक से पता चला कि लिस्ट तो घर पे रह गई। अब मुझे बताओ, अगर 15 आइटम्स आपने नोट किए थे तो उसमें से कितने आइटम आएंगे? 15 के 15 आएंगे क्या? काफी सारे क्या हो जाएंगे? मिस हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे माइंड से। तो अभी भी हम एक छोटा सा गेम करेंगे। वी विल डू व्हाट? वी विल जस्ट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ अराउंड 20 आइटम्स, 15-20 आइटम्स की एक लिस्ट बनाएंगे, सिंपल चीजों, राइट? रेडी आप लोग? चलो गुड। और मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, या समवन हु हैज गुड हैंडराइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड
कोई मेरी हेल्प करेगा? आ जाओ। इनके लिए क्लैप करेंगे, थोड़ा जोर से किया करो यार। आ जाओ। What's your good name? नेहा। चलो नेहा के लिए क्लैप करेंगे जोर से। एक बार टेस्ट करें ना, माँ को बहुत कर रहा है। ओके, तो अब एक काम करेंगे, we will just start writing certain things। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 1 और इसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट किसी ने बोला है 2 एंड द ऑब्जेक्ट 3 एंड द ऑब्जेक्ट, राइट? और इसे फास्ट करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें फ्रॉम यू। कोई भी एक चीज जो आप मार्केट से लेने जाते हो, जस्ट नेम एनीथिंग। सर्फ एक्सेल, आप लिख लो फर्स्ट सर्फ एक्सेल। ओके, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। और थोड़ा जोर से बोलोगे आप, है ना? जरूरी नहीं कि आप स्टैंड होके बोलो, आप खड़े होके बोलो, आप बैठ के भी बोल सकते हैं, राइट? चलो आप बोलो। सोप, ओके, थर्ड सोप। मिल्क, फोर्थ में मिल्क। Don't worry, she will be here and she will be having a mind, right? तो वो क्रॉस चेक करके आपको बता देगी। Fruits, okay. Fifth one is fruits, okay, right. Crockery, okay. 6 is crockery, okay, right. Clothes, कपड़े। जरूरी नहीं है स्पेलिंग सही हो, राइट? क्योंकि ये सिंबॉलिक है, तो मुझे पता है आप सही लिख रहे हो। ओके, 7 is clothes, 7 का आपने बोला है clothes, ओके, राइट। sugar, 8 sugar, ओके। bread, ओके, 9 is bread, ओके, good. Books, 10 is books, इधर साइड पर, राइट? यहाँ से स्टार्ट करें, यस। 11 chocolate, tea, 12 is tea, okay, yes. Body spray, 13 is body spray. Coffee, 14 is coffee। यहाँ पे काफी लोग चाय कॉफी पसंद करते हैं, राइट? So 14 is coffee, okay. Stationery, 15 is stationery, right? Shoes, 16 is shoes, right? X, okay, 17 is X, okay, okay, 18 is t-shirt, 18 t-shirt, okay, okay, 19 biscuits, 19 is biscuits, and 20 last one। देखिए मिस, चलो हम देखिए मिस लिख लेते हैं, राइट? 20, आपकी लाइफ में कोई ना कोई देखिए मिस जरूर है, ऐसा मुझे लग रहा है। 20 is देखिए मिस, ओके, हाँ, राइट, गुड। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपने एक लिस्ट प्रिपेयर की, हम सबने मिलकर यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर की, राइट? चलो सबसे पहले दोनों लोगों के लिए क्लैप करेंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मुझसे बोला। And now, अब एक सिंपल सी चीज बताओ, if you have to memorize this complete list in the same order, with on which number with which object is there, तो कितना टाइम लगने वाला है? विजिबल ही नहीं है। चलो मान के चलो इसे विजिबल बना देते हैं, आपने अपनी कॉपी पे बनाया हो,
कुछ ना कुछ टाइम होगा, राइट? चलो लेट्स सी कि ये लिस्ट को कितने फास्ट मेमोराइज किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है जब ये लिस्ट आप बोल रहे थे एट द सेम टाइम आई वाज एबल टू मेमोराइज इट। चेक करके देखें, राइट? चलो तो मैं इसे चेक करके बताता हूं, और आप अगर इन केस दिस इज ह्यूमन एरर, पॉसिबल एरर, अगर कहीं मिस्टेक होती है तो आप उस टाइम पे मत बताना, जब मैं लिस्ट कंप्लीट कर लूंगा फिर बताना, राइट? शुरू करें, और बाद में मैं माइक इनको दूंगा, शी विल क्रॉस चेक, अगर कुछ गलत होगा तो आप बताना, राइट? हां चलें, चलो लेट्स स्टार्ट। मैंने आंखें बंद कर ली और पीछे मेरे पास कोई आंखें नहीं है, राइट? दोनों आंखें सामने की तरफ है। चलो, एंड क्लोजिंग माय आईज, मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूं, एंड जस्ट आपकी भी मेमोरी में होगा या यहां लिस्ट में होगा, मैं साइड में हो जाता हूं। लेट्स सी कि क्या है। ओके, फर्स्ट इज सर्फ एक्सेल, 2 is vegetable, 3 is soap, 4 is milk, 5 fruits, 6 crockery, 7 clothes, 8 sugar, 9 bread, 10 books, 11 chocolate, 12 tea, 13 body spray, 14 coffee, yes, 15 stationery, 16 shoes, 17 eggs, 18 t-shirts, 19 biscuit and 20 dairy milk, right? और मैं एक बात बताता हूँ, ये लिस्ट मुझे सीधी नहीं आ रही, रिवर्स भी आ रही। शुरू करते हैं, लेट्स सी जो मैं कह रहा हूँ वो क्या मैं सच कह रहा हूँ या ऐसे ही कह रहा हूँ। लेट्स ट्राई, लेट्स चेक, कोई गलत तो नहीं ना क्या? चलो ओके, राइट, रिवर्स ऑर्डर से शुरू करते हैं। 20 dairy milk, 19 biscuit, 18 t-shirt, 17 eggs, 16 shoes, 15 stationery, 14 coffee, 13 body spray, 12 tea, 11 chocolate, 10 books, 9 bread, 8 sugar, 7 clothes, 6 crockery, 5 just a moment, fruits, 4 milk, 3 soap, 2 vegetables and 1 surf excel. आप में से कोई भी give any number and I will tell कि what object is there on the board. हाँ, एक सेकंड। 11 chocolate, 7 is clothes, 5 fruits, 17 eggs, हाँ 14 कॉफी। अब एक काम करते हैं, रिवर्स करते हैं, एक ऑब्जेक्ट आप बोलो कोई भी एंड आई विल टेल द नंबर। हां, ब्रेड 9, शूज 16, टी-शर्ट 18, चॉकलेट 11, हां टी 12, क्या मिल्क, ओके, जस्ट अ मोमेंट, milk is on 4, right? Dairy is 20. That means आप एक सिंपल सी चीज समझो, what I am trying to say. नया आगे पहले क्लैप करेंगे। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने टाइम में ये लिस्ट डेवलप हुई, I was able to memorize the entire list as it is. अब वो लिस्ट बोर्ड पे नहीं है, वो लिस्ट मेरे लिए कहाँ है? Inside my mind. आप समझ रहे हैं इस बात को? That means क्या हो रहा है? आप सिंपल सी चीज समझो। That means हो ये रहा है कि whatever was written over there, चाहे वो numbers के साथ हो या कैसे भी हो, वो पूरी की पूरी complete list आज mind के अंदर है, registered. That's why I am able to recall from any point. आप चाहे first से last बोलोगे, मैं बोलूँ आपको आपके नाम की spelling reverse बोलो, it will be very tough. जबकि आज आपकी जो भी है, जो इतने सालों से आप लिखते आ रहे हैं, अब किसी का ना खास हो तो JAR हो सकता है, वो बात अलग है। That would be easy. DED मेरा नाम है वेद, तो DED easy. कई लोग तो मुझे कह देते हैं, मेरे Facebook पे या YouTube पे कमेंट्स आते हैं, थैंक यू देव सर, तो मुझे लगता है उसके ऊपर -1 लगा दो, इनवर्स DED, राइट? चलो, तो ये जो टेक्निक मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट की, इससे आपका बिलीव बिल्ड हो रहा है कि ये हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं, जितने लोगों ने ये लिस्ट के कंटेंट बोले हैं कि मेरे सिखाए हुए लोग नहीं है, इधर क्या 100 रुपए दूंगा, फर्स्ट पे यही बोलना। आप समझ रहे हैं, राइट? बिकॉज यू ऑल आर अननोन टू मी, पहले आप मुझे नहीं जानते थे, हालांकि ये बात अलग है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग रहा होगा
you can memorize anything provided, जो एक बार मैं सर से भी कह रहा था, उन्होंने पूछा कि क्या हम सब कुछ याद कर सकते हैं, तो क्या हमें सब कुछ याद करना चाहिए? मैंने कहा नहीं, आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, because there are many things which may or may not be used in your entire life. अगर आपने बहुत ज्यादा रटने वाला ज्ञान इकट्ठा भी कर लिया, that means आप बहुत सारी चीजें मेमोराइज भी कर लो, तो you will be just like an encyclopedia or a Google जिसमें एक क्लिक में सारी चीजें अवेलेबल है। आप समझ रहे हो इस बात को? Because human mind की जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी, it is not to memorize, it is to think. मैं आपको बताऊं, हेनरी फोर्ड के बारे में बहुत ही जैसे बोलते हैं फेमस किस्सा है। उनके साथ में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, हेनरी फोर्ड को आप जानते हैं ना, फोर्ड गाड़ियां जिनकी थी, हेनरी फोर्ड के साथ में क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड के बारे में ये कहा जाता था कि बहुत ही ज्यादा बेवकूफ इंसान है, कुछ माइंड वगैरह नहीं है उनके पास, कुछ ज्यादा उनके पास मेमोरी पावर नहीं है, इस किस्म के वो इंसान है। तो बहुत सारे लोग उनको हमेशा गलत प्रूव करना चाहते हैं। तो एक बार क्या होता है, कुछ लोगों ने अपना ग्रुप डेवलप किया और उन्होंने कहा कि वी विल प्रूव दैट हेनरी फोर्ड इज अ फूल, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया, उन्होंने कहा कि ओके, हेनरी फोर्ड को हम बुलाएंगे एंड वी विल आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस, और हेनरी फोर्ड उन क्वेश्चंस का अगर आंसर कर देते हैं तो वी विल एक्सेप्ट कि ही इज वेरी वाइज मैन, राइट? हेनरी फोर्ड आया, हेनरी फोर्ड से पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपकी ये जो कार है, इस कार में जो स्टील यूज होता है उसमें कितना % कार्बन है? हेनरी फोर्ड ने क्या किया, अपने डेस्क का फोन उठाया, अपने एक इंजीनियर को कॉल किया, उससे सेम क्वेश्चन पूछा, उसने वो रिस्पांस दिया और उन्होंने बता दिया। ऐसे ही फिर एक दूसरा क्वेश्चन आया, उसके लिए भी उन्होंने सेम काम किया, फिर तीसरा क्वेश्चन आया, उसके लिए भी उन्होंने सेम काम किया। उसके बाद जो लोग बैठे थे उन्होंने पता क्या कहा, सी हेनरी फोर्ड इज सो फूलिश दैट ही डज नॉट नोस इवन द बेसिक्स ऑफ हिज बिजनेस, उसको बेसिक चीजें भी नहीं पता है। तो पता है हेनरी फोर्ड ने क्या जवाब दिया? हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया, आई डू व्हाट these all toppers cannot do, जिन टॉपर्स को मैंने अपने जॉब पे रखा हुआ है, they can memorize but I can think। समझ में आ रही बात? They can memorize but I can think। आप हमेशा ध्यान रखना, memory capabilities are very powerful and wonderful। जब तक आपको इसको यूज करना है, if you want to go to exam and you want to perform well, आपको memory technique आनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ आप इसको मेमोरी से ही ओवरलोड करते रहोगे, याद करने के कंटेंट से ओवरलोड करते रहोगे, तो there is a possibility कि you become a memory genius। लेकिन दुनिया में वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो मेमोरी जीनियस हो, अच्छी बात हो, बट they should have their thinking capability। आप समझ रहे हो इस बात को? जितनी बड़ी चीजें क्रिएट की जाती है वो इस चीज से नहीं क्रिएट की जाती कि आज तक क्या एग्जिस्ट करता है, वो इस बात पे क्रिएट की जाती है कि क्या एग्जिस्ट कर सकता है। आप समझ रहे हैं, राइट? तो मेमोरी टेक्निक्स मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये बात समझना है कि यू डोंट नीड टू बी सिली कि मैं आप सब कुछ याद करके ही रहूंगा। ये लिस्ट अगर मैं चाहूं जो आज मैंने आपके साथ लर्न की है, आई कैन मेक दिस लिस्ट गो इनसाइड माय परमानेंट मेमोरी, और आज से आप 10 साल बाद भी मेरे से पूछो तो आई कैन रिकॉल द सेम लिस्ट इन द सेम वे। ऐसा मैं कर सकता हूं, बट इज देयर एनी रिक्वायरमेंट? यस और नो? नो। आप समझ रहे हैं इस बात? सो डेवलप योर कैपेबिलिटीज, बट rely more on your thinking power, more on your mind power कि आप कैसे सोच सकते हो, आप कैसे रिकॉल कर सकते हो चीजों को। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है आप कैसे नई चीजें सोच सकते हैं, राइट? तो चलो अभी आज मैं बात करता हूं आपसे कि कैसे आप अपनी मेमोरी पावर को एनहांस कर सकते हैं। जानना चाहेंगे आप इसे? यस और नो? हाँ, देखो मुझे ये थोड़े जोश वाली आवाज जो है ना वो पसंद आती है, फिर बताने में भी मजा आता है, राइट? मैं आपको बताऊं, जो मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, एनएलपी का जो मेरा वर्कशॉप होता है, इट इज 5-day वर्कशॉप, 8 आवर्स डेली, तो उतना बोलने की कैपेबिलिटी मेरे पास है लगातार। अभी आपको चेक करना है आपके पास सुनने की कैपेबिलिटी कितनी है, राइट? और टुडे आई एम हियर फॉर जस्ट 1.5 आवर्स, तो इसमें कोशिश करो कि जो भी मैक्सिमम हो सकता है वो आप मेरे से ले लो, वो मैं आपको देता हूं। आप कनेक्टेड है मेरे साथ? कनेक्टेड है? यस, राइट, बहुत गुड। आपने एक बार क्लैप करो यार, आपको चलो अब मैं कुछ सिंपल चीजें बताता हूं आपको जिससे आपको अपनी मेमोरी के बारे में पता चलेगा। देखो क्या होता है, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी। आप चाहते हो ना जो चीजें आप याद करो, आप सोचो आप एक चैप्टर को, एक आंसर को याद करने में 1 घंटे
फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आपको उतना टाइम लगाना पड़ता है ना। बट इफ यू चेंज योर अप्रोच, इफ यू चेंज योर मेथड, तो चीजें क्या हो सकती हैं, बदल सकती है। बदलना चाहोगे आप? चलो तो बैकबोन स्ट्रेट करके बैठेंगे। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करते हो तो आपके माइंड में एक मैसेज आता है, समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। क्या मैसेज आता है? समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। आप सोच के देखो, कभी आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे और अचानक से कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जो वाकई आपके अटेंशन को डिमांड करती है, तो आप फटाक से सीधे हो जाते हैं। आप अपनी बैकबोन को जानबूझ के सीधा नहीं करते उस टाइम पे, ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्यों? बिकॉज़ योर माइंड हैज गॉट द कमांड दैट समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। मैंने आपको बोला कम्युनिकेशन कैसे होता है, थ्रू योर वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि बॉडी लैंग्वेज के साथ भी। तो माइंड को जैसे कि मैसेज गया समथिंग इज इंपॉर्टेंट, वो बॉडी को भी उसी पोस्चर में ले आता है जैसे समथिंग रियली इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन, और वो बैकबोन को क्या कर देता है, स्ट्रेट कर देता है। आप कभी भी जानबूझ के ऐसा नहीं करते। चलो नाउ मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कैसे हमारी मेमोरी फंक्शन करती है, कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, मेमोराइज करता है। देखो क्या होता है, हमेशा आपके पास में कुछ कंटेंट होता है जिसको आपको मेमोराइज करना है। There is some content जिसको आपको लर्न करना है। ये आपके नोट्स हो सकते हैं, राइट? ये कोई हो सकता है आपने कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई वीडियो देखी है, उसके कंटेंट्स आपको याद करने हैं। आपको कोई एग्जाम देना है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आंसर से आप लर्न कर रहे हैं, या कुछ भी, व्हाटएवर इज द कंटेंट। अब क्या होता है, जब इस कंटेंट को आप मेमोराइज करते हैं तो ये कंटेंट दो जगह पे होता है। फर्स्ट इट इज देयर इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, आपकी किताब पे, आपकी बुक पे, आपके नोट्स पे ये कंटेंट होता है, राइट? उसके बाद क्या होता है, इट गोज इनसाइड योर इंटरनल वर्ल्ड, आपके माइंड के अंदर चला जाता है। ये जाता है या नहीं जाता है? जैसे एक सिंपल सी चीज बताओ, जरा इसमें स्माइलिंग टेस्ट कर दूं। हां, अभी ठीक है। मुस्कुराते हुए चेहरे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, राइट? देखो, जब भी आप किसी कंटेंट को मेमोराइज करते हैं तो वो माइंड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। जैसे राइट नाउ आप यहां बैठे हुए हो और मेरी आंखों में देख रहे हो, बट राइट नाउ यू कैन सी योर रेफ्रिजरेटर इन योर होम, यस और नो? You can see the ceiling fan. आप अपने घर के मेन गेट का कलर भी देख सकते हो, राइट? जबकि आपकी आंखें कहां देख रही हैं? सामने देख रही हैं, but still you can access those things because they are there in your mind, in your memory. आपके मेमोरी के अंदर वो है, इसलिए आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो, राइट? अब सोचो, जब कोई चीज आपकी मेमोरी के अंदर जाती है, मैं आपको बताऊं कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो चीज कितने अच्छे से रिप्रेजेंट होगी। ये डिपेंड करता है जो लर्निंग मेथड, आपके लर्न करने का मेथड क्या है, ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सी चीज कितने अच्छे तरीके से आपको याद हुई। ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आप एक 3 आवर्स का कोई लेक्चर अटेंड करते हैं तो लेक्चर खत्म होने के बाद वो पूरा का पूरा याद रहता है या बहुत सारी चीजें भूल जाते हो? याद रहता है या भूल जाते हो? भूल जाते हो। और जब एक 3 आवर्स की मूवी देखते हो, उसके बाद कहीं कोचिंग जानी पड़ती है कि ये मूवी मुझे याद करनी है, जरा याद करवा दो सर प्लीज। आज तक गए आप कभी? नहीं। वो मूवी कैसे हो जाती है, आपके माइंड के अंदर रजिस्टर हो जाती है, वो आपके माइंड के अंदर पूरी तरीके से फिक्स हो जाती है और आपको वो याद रहती है। इनफैक्ट अगर आप उसको 5 इयर्स 10 इयर्स बाद में देखते हैं तो आपको एक सीन देखते ही याद होता है कि नेक्स्ट सीन क्या होगा, राइट? समझ रहे हो आप इस बात को? दैट मींस कि जब भी ये बात कही जाती है यू हैव पुअर मेमोरी, या अगर आप अपने आप से कहते हो कि मेरी मेमोरी तो बहुत कमजोर है, तो आप अपने आप से सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? जोर से बोल रहे हो आप? झूठ बोल रहे हो। And whenever you are saying to yourself that I have a weak memory, you are actually lying to yourself. अब मैं आपको बताऊं, आपका माइंड उन्हीं कमांड्स के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आप अपने माइंड को ये बोलते हो कि I have weak memory या I forget the things, तो वो क्या कहता है, इसको कमांड की तरह ले लेता है। मैंने आपको बोला ना प्रोग्रामिंग की बात है सारी, तो actually at that time when you are saying such sentences, you are programming your mind to forget the things. तो सबसे पहले एक चीज आज से एलिमिनेट करना शुरू कर दो कि स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर मेमोरी, स्टार्ट ट्रस्टिंग योर मेमोरी। अपनी मेमोरी को क्या करना है? ट्रस्ट करना है कि जो कुछ भी मैं याद कर रहा हूं वो मुझे याद रहेगा। आई हैव ट्रस्ट, आई हैव फेथ, राइट? और सेकंड जो चीज मैंने बताई, इट डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग मेथड कि कोई भी चीज कितने अच्छे से रजिस्टर होगी। जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी भी चीज को, किसी कंटेंट को, आपके नोट्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपका लर्निंग मेथड क्या होता है, मुझे बताओ। अगर आपको कोई चीज याद करनी है, कोई 1 पेज का आंसर याद करना है, तो कैसे याद करते हैं? बचपन में
के लिख के और उससे भी ज्यादा रट के। सही कह रहा है नहीं? इनफैक्ट जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमें टेबल्स भी जो सिखाए जाते हैं वो कौन से मेथड से? रट के। 2 + 2 2 + 4। और मैं अभी कहीं जोक सुन रहा था कि एक बच्चा था, उससे टीचर ने पूछा कि बेटा 2 का टेबल सुनाओ। तो कहता है 2 + 2 2 + 4 2 3 6 2 4 2 4 2 5 कहते ये क्या है? कहते ऊपर बोल गया म्यूजिक याद है। समझ रहे हो आप? तो हमारे साथ कैसे होता है एग्जाम में, जो आंसर आप रट के कहते हैं, अगर उसका फर्स्ट वर्ड भूल गया तो पूरा आंसर गया। समझ में आ रही है चीजें? क्योंकि फर्स्ट वर्ड, वो जो पहला वर्ड जहां से आपका जो रिदम था, जहां से आपका 2 + 2 शुरू हो रहा था, वो बेचारा 2 गायब हो गया। तो वहां से पूरी की पूरी लिंक क्या हो गई? मिसिंग हो गई। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जो रोड मेथड है, मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिस्ट आज के टाइम पे कहते हैं कि रोड मेथड इज द पुअरेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। रट के याद करना कौन सा मेथड है? सबसे पुअरेस्ट मेथड है, सबसे बुरा मेथड है। अब जब आप अपने बुक को पढ़ रहे होते हैं, जब आप अपने कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं, तो डू यू सी एनी मूवी? यस और नो? तो इसलिए वो आपको याद नहीं रहता, इसलिए वो आपको चीजें वैसी मेमोराइज नहीं हो पाती, बिकॉज़ देयर इज नो कंटिन्यूटी। अभी दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लियर है? चलो अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं। सपोज करो वही सेम है, ऑडी 1 एंड ऑडी 2। अब की बार बोला जा रहा है कि ऑडी 1 में जो मूवी है वो कलरफुल होगी और ऑडी 2 में सेम मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई जाएगी। आप इसको देखने जाओगे कलरफुल को, राइट? दैट मींस योर माइंड प्रिफर्स कलर्स। आजकल इस कॉन्सेप्ट को बुक्स में यूज किया जा रहा है। अगर आप देखो तो पहले जो बुक्स होती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। अब बहुत सारी बुक्स को क्या बनाया जाता है? कलरफुल बनाया जाता है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ यूं ही किया जाता है? नहीं, देयर इज अ पर्पस कि आपका माइंड कलर्स के साथ ज्यादा इंगेज होता है। कभी कभी आप शॉपिंग मॉल में जाते होगे, आप कुछ खरीदने नहीं गए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें लेके आ जाते हो। यस और नो? इसलिए होता है वो क्योंकि योर माइंड इज इंगेज्ड विद द कलर्स। वहां बहुत सारी कलरफुल चीजें डिस्प्ले में लगी होती है नहीं? तो आपका माइंड कलर्स के साथ इंगेज होता है। नाउ थर्ड, मुझे एक बात बताओ, वही सेम ऑडी 1 और ऑडी 2 की बात है। ऑडी 1 में जो मूवी चल रही है वो साउंड के साथ है और ऑडी 2 में कोई भी साउंड नहीं होगी, वो सीधे सबटाइटल्स लिख के आएंगे। आप इसमें जाओगे 1 में जाओगे। इसका मतलब आपका माइंड साउंड्स को लाइक करता है, आपका माइंड साउंड से लर्न करता है, ऑडियो से लर्न करता है। समझ रहे हो आप इस बात को? जब आप अपने कंटेंट को याद कर रहे होते हैं, योर आंसर्स, तो क्या वो आंसर्स आपके साथ बात करते हैं? इसमें कोई आवाज होती है? जब आप रटते हो तो आपकी आवाज जरूर आ जाती है, बाकी और कोई आवाज नहीं। जैसे आपने अकबर के ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा, तो क्या कभी अकबर आपके साथ बात करते हैं? नहीं करते। बट यू कैन मेक दिस हैपन। मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले ये चीजें कंप्लीट कर दे। अब इसके बाद फोर्थ, एक बात बताओ, एक फोटो एल्बम आप अपने घर में देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की फोटोग्राफ्स होती है ना, आपके पेरेंट्स की, भाई बहन की, बहुत सारे लोगों की, और एक बड़ी सी फोटोग्राफ है, उसमें कहीं बैकग्राउंड में आप भी दिखाई दे रहे हो। ध्यान किसके ऊपर जाता है? अपने ऊपर जाता है, राइट? बल्कि क्या करते हैं, मैं तो एक फैमिली को जानता हूं, उन्होंने एक शादी की डीवीडी को क्यों खराब कर दिया? कैसे? मजेदार तरीके से, कि वो पूरी डीवीडी में जहां वो आते थे वो हर जगह पॉज कर देते थे और उसमें रिवाइंड फॉरवर्ड, यानी अपने आप को देखने में इतना ही घेर कि जो डीवीडी थी वो क्या हो गई? पूरी खराब हो गई, स्क्रैच हो गई। तो सोचो माइंड कितना ज्यादा कंज्यूम होता है, कितना ज्यादा एंगेज होता है किसके साथ में? आई फैक्टर के साथ। यानी आपका माइंड किसको लाइक करता है? जिसमें क्या हो? आई हो, यूनिक हो। मैं आपको बताऊं, दो मजेदार चीजें बताता हूं। जब भी आप कोई अच्छी मूवी देखने जाते हो तो उसमें जो हीरो होता है, आप कोई अपने आप को उसी के साथ कनेक्ट करता है या नहीं? यस और नो? हाँ चलो। और क्यों? क्योंकि हमें वो क्यों मूवी अच्छी लगती है? बिकॉज इन हीरो यू सी योरसेल्फ। आप समझ रहे हैं? जो भी सेंट्रल कैरेक्टर है उसमें आप अपने आप को देख लेते हो। और ये बेचारी लेडीज की भी बड़ी दुखदाई कहानी है। सुनो, जब भी घर में टीवी सीरियल्स आते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर लेडीज को बहुत पसंद होते हैं। उसका मैं आपको एक जो सीक्रेट है वो बता देता हूँ। वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होते हैं? वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये डेली सोप वाले सीरियल में एक लेडी होती है जो बहुत अच्छी होती है और उसके आसपास के सारे लोग मिलकर उसे सता रहे होते हैं, राइट? अब क्या होता है,
चीज बहुत अच्छी है, जो टीवी सीरियल देख रही है वो अपने आप को वैसा फील करती है और अपने आसपास के सारे लोगों को वो सताने वाले और साजिश रचने वाले लोगों जैसा फील करती है, राइट? तो these people who are creating movies ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके माइंड को कैसे एंगेज करना है, आपके माइंड को कैसे ट्रिगर करना है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो क्या होता है, ये आई फैक्टर वहां पे काम करता है कि wherever you are involved, जहां पे भी आप इंगेज हो रहे हो, आप इन्वॉल्व हो रहे हो, वहां पे आपका माइंड ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करेगा, लर्न करेगा। और लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज, अगर सोचो आप रोड पे जा रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अभी आप अपने घर से यहाँ पे आए या जहां पे भी आप रुके हुए वहां से यहाँ पे आए, जितने लोगों को देखा सबके चेहरे याद है क्या? यस और नो? नो। लेकिन सोचो एक ऐसा इंसान होता जिसकी एक्चुअली 2 सींगें होती, अभी मेरी नहीं दिख रहे, और उसके पास एक एक्चुअल में हॉर्स टेल होती जिसे अपने हाथ में पकड़ के वो घुमाते हुए जा रहा होता। तो आप बताओ उस इंसान को आप जिंदगी में कभी भूल सकते थे क्या? नहीं। जब आप 80 साल के हो जाते तो आप बच्चों को कहानी सुनाते कि बेटा तुम्हें पता है जब मैं आईटीएस कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था तो वो एक दिन था जहां पे मैंने एक ऐसे आदमी को देखा था जिसकी एक्चुअल की सींगें थी और घोड़े वाली पूंछ थी, राइट? और बच्चे बोलेंगे कि दादाजी या दादाजी की मेमोरी कितनी अच्छी है। ये अलग बात है कि अभी सुबह खाना खाया कि नहीं खाया भूल गए। तो आपको ये एक्सपीरियंसेस क्यों याद रहते हैं? बिकॉज दे आर यूनिक, दे आर यूनिक। तो आपका माइंड किसी भी चीज को लर्न कर लेता है अगर इसमें इस तरह की इंग्रेडिएंट्स हैं, इस तरह की चीजें उसमें। क्या क्या? फर्स्ट इज वो मूवी की तरह हो, बोलो मूवी। सेकंड कलर्स। साउंड। आई। यूनिक। इसका मतलब अगर किसी भी कंटेंट के अंदर ये 4-5 चीजें हैं, या मैं आपको बताऊं 4-5 चीजें तो छोड़ दो, इसमें से कोई एक भी अगर सही तरीके से रजिस्टर्ड है आपके माइंड में, इंगेज है आपका माइंड उसमें, तो आपका माइंड उस चीज को क्या कर लेगा? मेमोराइज कर लेगा, याद कर लेगा। तो चलो एक काम करते हैं, जो ये चीजें मैंने आपको बताई इसको इन्वॉल्व करते हैं उसी लिस्ट को याद करने में, जो लिस्ट अब यहाँ पे नहीं है। याद करना चाहोगे उस लिस्ट को? यस और नो? ठीक है। उसके लिए मैं छोटे से एक ट्रिक्स बताता हूँ। अगर नोटपैड है सबके पास, आप एक लिस्ट, एक ट्रिक नोट करो जल्दी से। जल्दी फास्ट, ठीक है? रेडी है सारे? चलो लिखो, वन लिखना, वन डैश करके लिखो सन, 1 डैश सन। लिख लिया आपने? चलो सब लोग रेडी हो जाओ जल्दी से, फटाफट पहले। शुरू करें? रेडी? चलो 1 पे लिखो सन, 1 सन, SUN सन। 2 पे लिखो शू, 2 डैश शू, SHOE शू। 2 पे शूज, राइट? 3 ट्री, ट्री के आगे डैश करके लिखो ट्री। 4 के आगे लिखो डोर, 4 डोर। लिखा आपने? 5 वाइफ, WIFE वाइफ। कई बार 5 के लिए कोड लोग बोलते हैं वाइफ भी यूज कर सकते हैं, नाइफ भी यूज कर सकते हैं। मेरा एक पार्टिसिपेंट था, उसने बोला दोनों एक ही बात। चलो 6 विक्स, VICKS, विक्स हो गया ना, जुकाम हो जाता है तो लगाते हैं 6 विक्स। 7 हेवन, 7 हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। देखा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इमेजिनेशन में देख सकते हैं। 8 प्लेट, 8 पे आप लिखो प्लेट, राइट? 9 वाइन, 9 वाइन, 8 प्लेट, खाना खाने वाली प्लेट, राइट? 9 वाइन लिखा। 10 hen, 10 hen। 11 lemon, 11 lemon, नींबू, lemon। 12 shelf,
12 शेल्फ होती है ना, बुक शेल्फ, अलमीरा वाली शेल्फ। 13 जो वर्ड मैं बोलने जा रहा हूँ वो ग्रामेटिकली सही नहीं है लेकिन मेमोरी के लिए काम आएगा तो हम यूज कर लेंगे। 13 थर्स्टिंग यानी कि प्यास लगना, ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, थर्स्टिंग लेकिन आप लिख सकते हो, राइट। 14 फोर्ट इन, 14 क्या है, फोर्ट इन, किले में, फोर्ट इन, राइट। 15 लिफ्टिंग, 14 फोर्ट इन, फोर्ट मींस किला, फोर्ट इन, राइट। 15 लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का मतलब उठाना, 15 लिफ्टिंग, लिखो लिफ्टिंग। 16 स्वीट 16, 16 डैश करके लिखो स्वीट 16। अब गर्ल हो तो बॉय को इमेजिन कर सकते हो, बॉय हो तो गर्ल को इमेजिन कर सकते हो, राइट। 17 सेटिन, 17 सेटिन, सेटिन होती है ना, देखो बॉडी लैंग्वेज कितना काम करती है। मैंने बोला सेटिंग, समझ नहीं आया, मैंने बोला ऐसे तुरंत, अच्छा राइट। 17 सेटिनी या सेटिन, राइट। नाउ 18 अटैकिंग, 18 अटैकिंग, बस दो और बच रहे हैं। 19 नमकीन, 19 नमकीन एंड 20 आंटी, 20 इज आंटी। आपकी जो भी फेवरेट आंटी है उनको आप डाल सकते हो, राइट। अब देखो अब यहाँ से मजा आना शुरू होगा, यहाँ से आप वही चीजें लर्न करना शुरू करोगे और आप एप्लीकेशन समझोगे। समझना चाहते हैं, रेडी है? देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने अभी लिस्ट डेवलप की है, जो लिस्ट अभी आपने डेवलप की है वो लिस्ट कैसी है, वो लिस्ट बनी हुई है राइम मेथड पे। राइम मेथड कैसा, जैसे हम लोग पोएम या सॉन्ग्स को याद कर लेते हैं। ये कैसा है सुनो, 1 sun 2 shoe 3 tree 4 door 5 knife 6 wig 7 heaven 8 plate 9 wine 10 hen 11 11 12 shelf 13 13 14 14 15 lifting 16 sweet 16 17 18 18 attacking 19 19 20 आंटी। समझ गए? इसे 2-3 बार आप रिपीट जैसे ही करोगे ये लिस्ट आपको मेमोराइज हो जाएगी। क्यों मेमोराइज हो जाएगी? क्योंकि ये क्या है, रिदम में। 1 और सन सुनने में एक जैसा है ना, 2 शू सुनने में एक जैसा है, 4 डोर सुनने में एक जैसा है, 9 वाइन सुनने में एक जैसा है, राइट। आप समझो क्या करना है, एक्चुअली जब हम किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में याद करते हैं, सीक्वेंशियल वे में याद करते हैं, तो क्या होता है, जब हम कहते हैं ना पॉइंट नंबर 1 इज दिस, पॉइंट नंबर 2 इज दिस, तो वो 1 की कोई क्लियर इमेज हमारे माइंड में नहीं आती, क्योंकि वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है ना, नंबर्स है। समझ रहे हो इस बात को? तो हमने क्या किया, हर नंबर को हमने कोड असाइन कर दिया, ये आपके कोड्स है 1 to 20 के, राइट। अब देखो कैसे याद होता है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वो 20 आइटम्स की लिस्ट आप सबको याद हो। देखना चाहते हो? यस और नो? गुड, चलो शुरू करें। 1 का क्या कोड है, सन। ओके, आपने बोला था सर्फ एक्सेल, याद है? अब देखो मेमोरी में कैसे ये लिस्ट प्लान होने वाली है। इमेजिन करो आप सन को हाथ से पकड़ रहे हो, बेचारा बहुत गंदा हो गया है, आप उसको सर्फ एक्सेल से धुल रहे हो और वो चिल्ला रहा है, मुझे क्यों नहीं ला रहा भाई, राइट। नाउ 2 इज शू, और आपने किया था वेजिटेबल्स। अब आप देखो, इमेजिन करो यू आर, और आप कई बार आंखें बंद कर सकते हैं, कई बार आंखें खुली रख सकते हैं, दोनों आपको हेल्प करेंगी कंसंट्रेट करने में। जस्ट लिसन टू माय स्टोरी, फनी स्टोरी। 2 शू, देखो आप मार्केट जा रहे हैं लेकिन आपने बैग या कैरी बैग ले जाना भूल गए, तो आप वेजिटेबल्स को अपने शूज के अंदर रख के लेके आ रहे हैं। इमेजिन योरसेल्फ, राइट। 3 ट्री, 3 ट्री, और आप देखो आप जा रहे हैं और आपके पास बहुत ही अच्छा सा एक सोप है और आप बहुत खुश हो रहे हैं पेड़ को देख के और उसको आप नहला रहे हैं सोप से। देखो जॉनसन बेबी या डव या जो भी सोप आपको पसंद है, जिससे आप नहाते हो, यू आर वॉशिंग एंड मेकिंग द ट्री बाथ विद द सेम सोप, राइट। नाउ 4 डोर, और आप देखो अमूल के या बहुत सारे ऐसे मिल्क के पैकेट्स आते हैं ना, आप देखो वो पैकेट्स को आप ले रहे हो और बोर्ड पिन से डोर के ऊपर फिक्स कर रहे हो, लगा रहे हो। 4 डोर मिल्क, राइट। नाउ 5 वाइफ, और आपने बोला था फ्रूट्स, तो आप इमेजिन करो कि जो आप किसी भी एक वाइफ को आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर मैरिज हो गई है तो अपनी वाइफ को इमेजिन कर सकते हो, या तो किसी भी आप एक लेडी को इमेजिन कर सकते हो, राइट। एंड नाउ देखो कि उसने बहुत सारे फल उठाए हुए और उससे बैलेंस नहीं हो रहा, वो सारे फल उसके हाथों से गिर रहे हैं, राइट, और आप उसकी हेल्प कर रहे हो वो फलों को राइट प्लेस पे रखने के लिए। नाउ 6 विक्स, और देखो
आपके जितने प्लेट्स और कप्स है ना, इन्हें सबको जुकाम हो गया, इन्हें छींक आ रही है जोर जोर से, और ये उछल उछल के छींक रहे हैं, और आप इन सबको विक्स लगा रहे हैं, राइट? नाउ 7 हेवन, आप देखो अभी हेवन में क्या हो रहा है कि जितने ये सब इंद्र देव और बाकी सारे देवता होते हैं ना, इनमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो सब नए नए क्लोथ्स पहन रहे हैं, राइट? 8 प्लेट शुगर, आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारी शुगर एक छोटे से प्लेट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी मम्मी चिल्ला रही है कि इस पे नहीं रखा जाएगा, ये सब गिर रहा है, क्यों फैला रहे हो? और आप देखो, इमेजिन करो, राइट? 9 वाइन, आप देखो कोई इंसान है, वो बेचारा वाइन का बहुत शौकीन है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, वाइन को ब्रेड पे डाल रहे हो, ब्रेड को वेट कर रहे हो वाइन से, और उसके बाद उसको खिला रहे हो, और वो आपको बहुत आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है? 10 हैंड्स, अब देखो एक बेचारी हैन है, उसको अभी बहुत सारा वर्कलोड है, क्यों? क्योंकि उसको बोला गया आज से तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो वो बहुत सारी बुक्स को अपने सर पे रख के भाग रही है यहाँ, राइट? नाउ 11 लेमन, आप देखो कि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन आपके फ्रेंड ने आपको चॉकलेट गिफ्ट की है और उसने उस पे नींबू डाला हुआ है, लेमन, और वो लेमन लगा के आपको चॉकलेट खिला रहा है, और टेस्ट करके देखो मुंह में कैसा टेस्ट आ रहा होगा, चॉकलेट विद लेमन, राइट? 12 शेल्फ, आप देखो आपने अलमारी खोली अपनी, और आपके ऊपर बहुत ढेर सारे टी बैग्स गिर गए, और बहुत सारे टी बैग्स में से वो जो चाय पत्ती होती है ना, वो पार्टिकल्स भी आपको लग गए, और आपको बहुत बुरा लग रहा है कि ये क्या हो गया। 13 थर्स्टिंग, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है और आपको पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, और आपने देखा एक बॉडी स्प्रे की बोतल वहां है, और आप बॉडी स्प्रे की बोतल को ही मुंह में स्प्रे कर रहे हो पानी पीने के लिए। 14 फोर्ट इन, आप देखो आप रेड फोर्ट जा रहे हो घूमने के लिए, और वहां पे अभी क्या है, हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां पे हैं, और जो कोई भी अंदर जा रहा है उसको पहले वो कॉफी गिफ्ट कर रहे हैं, पहले वो कॉफी पिएगा और उसके बाद ही अंदर जाएगा। 15 लिफ्टिंग, अब आप इमेजिन करो, देखो 4-5 लोग हैं जो बहुत सारे स्टेशनरी का सामान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़े-बड़े शार्पनर, पेंसिल, इरेजर सब कुछ रखा हुआ है, और वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? 16 स्वीट 16, अब आपने मुझे बोला था शूज, राइट? तो जिसको भी आप बॉय हो तो आप गर्ल को इमेजिन कर सकते हो, गर्ल हो तो एक ब्यूटीफुल बॉय को इमेजिन कर सकते हो, या जो भी हैंडसम बॉय, और आप देखो कि आप उसको बहुत ही अच्छे शूज गिफ्ट कर रहे हैं, और वो अगला इंसान बहुत खुश हो रहा है उसको लेके, और इतना खुश हो रहा है कि उसको गले में पहन लेगा। नाउ 17 सेटिंग, अब देखो एक सेठी जी है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, उनके घर में कोई चीज खराब हो गई है, वो लोगों को अंडे फेंक के मार रहे हैं। X 18 अटैकिंग, देखो आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है, और आपका दोस्त आपको टी-शर्ट फेंक के मार रहा है, और आप उसको टी-शर्ट फेंक के मार रहे हैं। 18 अटैकिंग, राइट? 19 नमकीन, देखो आप नमकीन खाने के लिए आपने पैकेट खोला है, लेकिन उस नमकीन के पैकेट के अंदर नमकीन के साथ बिस्किट्स भी मिक्स्ड है, राइट? और बड़े-बड़े बिस्किट्स। और लास्ट 20 आंटी, अब आपको देखी मिर्च तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, राइट? अब देखो आपने जब मेरे साथ यहाँ पे इंटरेक्शन किया, एक बात बताओ, ये लर्न करने में आपको मजा आया या थक गए आप? मजा आया? इससे एक बहुत बड़ी लर्निंग है, आप ध्यान से समझना। योर माइंड, ध्यान से सुनो, योर माइंड गेट्स बोर्ड व्हेन इट इज नॉट लर्निंग। आप जब अपने कंटेंट को पढ़ते हैं और वो याद नहीं होता, तब आपका माइंड बोर हो जाता है, जब वो याद होता है तो आपका माइंड एंजॉय करता है। तो ये हमने गलत कनेक्शन बना रखे हैं कि लर्निंग में पेन है, एक्चुअली लर्निंग में फन है। हमारा माइंड एंजॉय नहीं तब करता है जब हम लर्न करते हैं। आप एक मूवी को देखने जाते हो फर्स्ट टाइम, आपको मजा आता है, लेकिन उसी मूवी को अगर आपको 50 बार दिखाया जाए फिर सारा मजा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि योर माइंड इज नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू फ्रॉम इट। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो व्हेनेवर यू आर लर्निंग, योर माइंड इज एंजॉयिंग, योर माइंड इज, आवाज गायब, योर माइंड इज एंजॉयिंग। हां, मुझे पता है मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, आप हो जा रहे हो, लेकिन ये भी याद रखो कि बोलना भी है। हां, चलो गुड। अब मैं आपको बताता हूँ, ये लिस्ट आपको पूरी की पूरी मेमोराइज है, पूरी की पूरी रिकॉल है, क्योंकि 1 एंड 2 हो सकता है कि आपको याद ना हो, लेकिन जैसे ही मैं आइटम बोलूंगा आप अपने आप एक साथ सारे के सारे रिस्पॉन्स करेंगे। सन, क्या नजर आ रहा है? और जोर से बोलेंगे। शू, क्या नजर आ रहा है? 3 के साथ क्या नजर आया? डोर के साथ क्या नजर आया? ओके। 5 के साथ? विक्स के साथ? क्रॉकरी। गुड। जिसने अपने इमेजिनेशन में प्लेट देखा था उसको प्लेट दिखाई दे रही है या नहीं? राइट? ओके। 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन,
16 sweet 16. 17 satin. 18 attacking. 19 namkeen. 20 auntie. Clap करो सब अपने. देखो जिस लिस्ट के लिए अभी हमारा सेशन मेरे ख्याल से हार्डली 1 आवर में कंप्लीट हुआ होगा, हार्डली. आप समझ रहे हैं? और you have memorized something जिसके लिए आपका माइंड शायद कह रहा था कि इसको याद करने में 3-4 घंटे लग सकते हैं, और आपने 5-7 मिनट्स के अंदर उसको मेमोराइज कर लिया. और मैं आपको बताऊं 1 या 2 बार आप इसे रिकॉल कर लो फिर तो कई दिनों तक नहीं भूलेगा. आप समझ रहे हैं इस बात को? दैट मींस, और देखो मैंने क्या किया, मैंने जब आपको लिंक्स बनाए, देखो हमारी जो मेमोरी है, आवर मेमोरी इज लिंक मेमोरी. कौन सी मेमोरी हमारे पास? लिंक मेमोरी. हमारी मेमोरी लिंक के थ्रू याद करती है. अब क्या होता है जब आप लिंक मेमोरी को, देखो लिंक्स कैसे बनेंगे ध्यान से समझना. कोई एक चीज है मुझे बार बार बड़ा फेवरेट मार्कर मिल जा रहा है, ये और कोई बात नहीं, मुझे पता है आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी है. देखो कोई एक है आइटम नंबर फर्स्ट और एक दूसरा है एक्स. आपको ए को एक्स से रिलेट करना होता है तो इसके बीच में एक लिंक डेवलप होता है. जब आप रट के लिंक बनाते हो तो पता है कैसे लिंक बनता है? आप ऐसे याद करते हो. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टीवी जो है ना, टेलीविजन, उसका जो इन्वेंशन किया था वो जेएल बेयर्ड ने किया. किसने? जेएल बेयर्ड. और हम ऐसे याद करते हैं तो कैसे करते हैं? टेलीविजन जेएल बेयर्ड, टेलीविजन जेएल बेयर्ड, टेलीविजन जेएल बेयर्ड, टेलीविजन जेएल बेयर्ड. याद हो गया? अब हमने जो लिंक क्रिएट किया, ये लिंक इन 5 में से किस चीज के साथ बना हुआ है? किसके साथ? साउंड के साथ बना हुआ है. अब क्या होता है जब हमने लिंक बनाया है सिर्फ साउंड के साथ, तो हमने याद कैसे किया है कि जहां पे हमारा फर्स्ट वर्ड खत्म हो रहा है उसकी साउंड के साथ हमने कनेक्ट किया है कि नेक्स्ट वर्ड वहीं से स्टार्ट हो रहा है. अब एक सिंपल सी चीज बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये जंगल है और आपके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है. आप उस घोड़े को यहाँ लेके जाते हैं, हॉर्स को, और उस हॉर्स को आप चाहते हैं कि वो वहीं पे रुके क्योंकि कल आप आएंगे और उसे ढूंढेंगे. कल आपको घोड़ा वहीं मिलना चाहिए. तो आप एक काम करते हो, उस हॉर्स को एक ट्री के साथ में बांध देते हो, तो घोड़ा वहीं रहेगा ना. लेकिन अगर मान लो आपने घोड़े को बांधा है एक धागे से, अब जब नेक्स्ट डे आप वहां आओगे तो घोड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो कहीं और ही मिलेगा. तो जब हम साउंड के साथ कर रहे हैं तो हमने एक्चुअली क्या किया, सिर्फ एक स्ट्रिंग लगाई है और उस स्ट्रिंग से किसी चीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? लेकिन अगर हम उस स्ट्रिंग को एक मोटे से रस्से में चेंज कर दें, रोप में कन्वर्ट कर दें, तो क्या होगा? याद रहेगा या नहीं? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ जेएल बेयर्ड और टेलीविजन इसे कैसे चेंज कर सकते हैं. क्योंकि अभी हम सिर्फ एक चीज यूज कर रहे थे, साउंड. अब हम इनमें से कुछ चीजों को और यूज कर लेते हैं, राइट? तो जस्ट आप इमेजिन करो आपकी टीवी स्क्रीन है, अपने टीवी को देखो, और वो जो टीवी है जिस भी कलर की है, देखो वो टीवी जो है उसमें कुछ ऐसा हो गया कि उसकी बियर्ड निकल रही है, दाढ़ी निकल रही है बहुत बड़ी सी, और आपके घर के सारे लोग उस टीवी को देख के डर रहे हैं. और अब आप दोनों हाथों से बहुत भारी सी टेलीविजन स्क्रीन को वहां से उठा रहे हो और आप उसको ले जाके जेल में बंद कर रहे हो. कहां बंद कर रहे हो? जेल में. अब मुझे बता दो, टेलीविजन और जेल बेयर्ड कभी जिंदगी में भूलेगा? कुछ भी नहीं किया ना, मैंने रिपीट किया. ये स्टोरी मैंने आपको कितनी बार बताई? एक बार. वो लिस्ट हमने कितनी बार मेमोराइज की? एक बार. और अपने आंसर्स को हम कितनी बार करते हैं? पता नहीं कितनी बार, जब तक हमें ये कंफर्म ना हो जाए कि वो माइंड के अंदर बैठ गया है और वो वैसा का वैसा लिख सकते. क्यों? क्योंकि हमारा मेथड ही कौन सा था? रोड मेथड था. नाउ यू कैन अप्लाई दिस मेथड. इसमें देखो हमने क्या चीज देखी, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छा, जो मैं बता रहा हूं ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है, और इसे आप यूज कर सकते हो, इसे आप अप्लाई कर सकते हो. अभी देखो कैसे, जैसे मैंने बोला टेलीविजन और जेल बेयर्ड, तो मैंने क्या किया कि जो एक स्टिल फोटोग्राफ था और जिसमें सिर्फ साउंड का लिंक था, मैंने वहां पे एक मूवी बना दी. यस और नो? यस सर. उसमें कुछ कलर्स थे, आपने बियर्ड का भी कलर देख लिया होगा, भले मैंने बोला नहीं. किसी को काली दिखी होगी, किसी को गोल्डन दिखी होगी, किसी को व्हाइट दिखी होगी, लेकिन दिखी जरूर. साउंड भी, क्योंकि आपके घर के लोग बोल रहे हैं, उससे डर रहे हैं, उसमें आई इन्वॉल्व है, आप उस टीवी को लेके जा रहे हैं, राइट? और ये यूनिक चीज, आपके घर के टेलीविजन को कभी दाढ़ी निकली है? नहीं, राइट? दैट मींस यू हैव कंबाइंड ऑल 5 थिंग्स इन क्रिएटिंग वन पर्टिकुलर लिंक. एक लिंक को क्रिएट करने में आपने क्या किया?
5 चीजों को इन्वॉल्व कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा 5 की 5 इन्वॉल्व करनी जरूरी है, इसमें से 1-2 भी करेंगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको चीजों को लिंक करना है। और एक बात ध्यान से समझना, हमारा माइंड जो है ना वो अननोन से कई बार थोड़ा सा डरता है। तो जब मैं कह रहा हूँ टेलीविजन, तो टेलीविजन आपके लिए नोन है या अननोन है? जोर से बोलो, नोन है। टेलीविजन आपके लिए नोन है, लेकिन जेल बियर्ड आपके लिए नोन है या अननोन है? अननोन है, राइट? तो जो चीज आपके, एक चीज आपके लिए नोन है और दूसरी चीज आपके लिए अननोन है, और आपको ये दोनों को कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अननोन में से कुछ नोन निकालना होगा। इस काम को कहते हैं फाइंडिंग कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? फाइंडिंग कीवर्ड्स। जैसे देखो जेएल बियर्ड जो है वो हमारे लिए अननोन है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला जेल और बियर्ड, तो वो आपके लिए क्या हो गई? नोन। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप अननोन में से नोन को फाइंड आउट कर लेते हैं, आपका माइंड उन चीजों के साथ क्या हो जाता है? लिंक हो जाता है, इंगेज हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी ऐसी चीज को याद कर रहे हैं, तो जस्ट आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी which will be known, और दूसरी चीज क्या होगी? अननोन। आपको इसके बीच में लिंक क्रिएट करना है। और कैसे क्रिएट करना है कि जब आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये 5 में से जितनी चीजें आप चाहो उतनी इन्वॉल्व करो। और मैं आपको बताऊं एक बात, अगर आपने ये लिंक क्रिएट करने की हैबिट डाल ली, आप जिंदगी में कभी भूले नहीं होंगे। भूले नहीं होंगे मतलब क्या? फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली यू विल ऑलवेज रिमेन यंग, बिकॉज़ यू विल बी ऑलवेज क्रिएटिंग न्यू न्यूरल पाथवेज। आप हमेशा अपने माइंड में नई चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका माइंड हमेशा यंग रहेगा। कई बार क्या होता है ना, लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्शन होता है, एज ज्यादा हो गई तो अब तो मेमोरी कमजोर हो जाएगी। अच्छा, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी थी दीवार, वो आज तक याद है। अभी कल जो सीरियल देखा वो आज याद कर, अगले 5 साल तक याद रहेगा। तो कैसे मेमोरी कमजोर है? इट इज जस्ट योर बिलीफ जो आप अपने माइंड के अंदर प्लांट कर रहे हैं, राइट? तो मुझे नहीं पता कि ये बिलीफ सच है या झूठ है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मान लेना कि मेरी मेमोरी अच्छी है और स्ट्रांग है, मेरे लिए फायदे का हो, मानना चाहिए या नहीं? समझ रहे हो इस बात को? तो आपको क्या करना है, यही बिलीफ अपने अंदर रखना है। यू कैन क्रिएट लिंक्स। ये 5 चीजें आपको समझ में आई? यू कैन फाइंड कीवर्ड्स, और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे सपोज आपको कोई बुक और ऑथर याद करना हो, इन द सेम वे यू कैन लर्न। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जैसे एक था, अभी मुझे किसी ने बताया कि देयर इज अ बुक मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी, राइट? तो मुझे ये कहीं पे एक सेमिनार में बोल रहा था, मुझे याद करना था, तो मैंने कुछ नहीं किया, आंखें बंद की, इमेजिन किया सलमान खान मिडनाइट में चिल्ड्रंस को किताबें बांट रहे हैं। सलमान खान मिडनाइट में बच्चों को क्या बांट रहे हैं? किताबें बांट रहे हैं। अब बताओ, मिडनाइट चिल्ड्रन और सलमान खान से सलमान रश्दी याद आ जाएगा या नहीं? क्योंकि अननोन में से क्या बना लिया? नोन बना लिया। तो यू कैन जस्ट क्रिएट नोन फ्रॉम अननोन। तो आपको ये पावर को यूज करना है। अब आप शायद ऐसा समझ पा रहे होंगे कि ओके चलो हमने कुछ चीजों के लिंक्स बनाना सीख लिया, कुछ समझ लिया, लेकिन जब हमारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बड़े-बड़े लॉन्ग पैराग्राफ्स आएंगे, जब हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके लॉन्ग आंसर्स होते हैं, कोई थ्योरी होती है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कैसे याद करेंगे? जानना चाहोगे आप इसे? यस और नो? चलो अब मैं वो बताऊं। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? राइट? अब चलो मैं बताता हूं कैसे। क्या होता है, जब भी आपको कोई भी कंटेंट याद करना है, जब भी आपको कोई भी कंटेंट लर्न करना है जो बड़ा है, तो पहला पॉइंट है लर्निंग का, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई और आपने रट लिया या याद कर लिया, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में कभी भी यूज होगी या नहीं? नहीं, आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की। आप समझ रहे हो इस बात को? तो जैसे एक सिंपल सी चीज है, अगर आप आज कोई एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मैनेजमेंट का, आप पीजीडीएम में आप मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपने बहुत अच्छे से रट लिया, याद कर लिया, एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख दिया, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड यू गो टू सम इंडस्ट्री, और जब आपको वो बोलते हैं ओके ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है और इस कॉन्सेप्ट की आपके पास मास्टरी है, नाउ अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे जाए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं? नहीं, क्योंकि क्या नहीं है? अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसलिए ध्यान से समझो, आपकी मेमोरी कैपेबिलिटी कितनी भी डेवलप हो जाए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट पॉइंट। बिना अंडरस्टैंडिंग इट विल बी यूजलेस टू मेमोराइज एनीथिंग।
तो जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, मैं ये प्री एज्यूम करके चल रहा हूं कि जिस कॉन्सेप्ट को आप लर्न करना चाहते हैं यू हैव अंडरस्टूड इट ऑलरेडी, मान लो ऐसा। फिर टेक्निक बताओ कैसे लर्न करेंगे। गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो जब आपने किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है और अब आप उसे मेमोराइज करना चाहते हैं तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं ना, टिप दूं या नहीं दूं? हाँ गुड। तो देखो क्या है ना, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी 2 नोट्स आप बनाना, जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो नोट्स बनाना, और एक नोट्स और बनाना आप पैरेलली जो आपको मेमोराइज करने में हेल्प करेंगे। आपको मालूम है ना, जब एग्जामिनेशन आते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में इन्वेस्ट होता है? रिवीजन में। यस और नो? कितना अच्छा हो कि अगर आपका रिवीजन टाइम जो है वो इतना कम हो जाए कि यू जस्ट रिवाइज एंटायर चैप्टर इन 5-10 मिनट्स। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। और अगर आप मेरा मेथड अप्लाई करोगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो चीजें आपको एग्जाम में नहीं याद आती थी या भूल जाते थे वो प्रोबेबिलिटी लगभग खत्म हो जाएगी। चाहोगे आप ऐसा? चलो जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, अगेन बैकवर्ड स्ट्रेट करके सुनना, तभी समझ में आएगा, राइट? और एक फॉर्मूला और बता देता हूं, अगर आपको किसी भी टीचर का, किसी भी ट्रेनर का बेस्ट लेना है तो मेक आई कांटेक्ट विद दैट पर्सन। मैं आपको बताऊं, टीचर्स हैं यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं और वो जानते हैं कि जो बच्चा आंखों में देख रहा होता है वो ज्यादा समझ रहा है और जो आंखों में नहीं देख रहा है वो कम समझ रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो मैं आप में से हर किसी के साथ हर मोमेंट पे आई कांटेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन मुझे अभी तक लगता है कि आप में से जितने लोग हैं हर किसी से एक ना एक बार मेरा आई कांटेक्ट जरूर हुआ है। यस और नो? हुआ है ना? तो अगर आप अपने साइड से वो कांटेक्ट बिल्ड करो तो एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग। जो मैं आपको सिखा रहा हूं आपका माइंड ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। तो व्हेन यू आर इन क्लास try to look in the teacher's eyes। आप कोई किसी सेमिनार में हो, कॉन्फ्रेंस में हो, तो टीचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, आप बहुत सारा लर्न करोगे, राइट? चलो अब मैं आता हूं कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या होता है जब भी आप किसी पैराग्राफ को, जैसे मैंने नोट्स बिल्ड करने के लिए भी बोला, आपको क्या करना है, एक पूरी थ्योरी को आप पढ़ो पहले, राइट? ऐसे ही होगा ना, थ्योरी कंटेंट पूरा एक पेज का। अब क्या करना है कि जब ये पूरे पेज को आप आइडेंटिफाई कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो, तो आपको पता होगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। पता होगा या नहीं होगा? यस और नो? तो अब आपको क्या करना है, जो आपका मेमोरी वाला नोट्स है जो मैंने आपको बोला आप बिल्ड कर सकते हैं या आप A4 शीट्स बिल्ड कर सकते हैं, उसमें क्या करो, वो सेंट्रल आइडिया को एक पर्टिकुलर जगह पे लिखो। दिस इज द सेंट्रल आइडिया, ये किस कॉन्सेप्ट के बारे में है। उसके बाद क्या करना है, अब आपने मान के चलो कि इसमें 5 पॉइंट्स थे या 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, आपको यहां से एक लाइन ऐसे ऐसे कुछ ड्रॉ करनी है विद डिफरेंट कलर, 4-5 स्केच कलर्स रख लो आप। कौन से? मेजर, ऐसा नहीं कि 4-5 मैंने बोले थे, एक स्काई ब्लू, एक डार्क ब्लू, एक मैजेंटा ब्लू, रेड, ब्लू, ग्रीन, जिसको आपका माइंड अलग तरीके से स्पेसिफाई कर सकता है, पहचान सकता है। अब आपने एक कलर लिया, सपोज ब्लू लिया, अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आया उस फर्स्ट पॉइंट का सेंट्रल आइडिया, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन पॉइंट है आपको याद रखने वाला, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर इसके कुछ सब पॉइंट्स थे तो अगेन यहाँ से आप कुछ ब्रांचेस बना लो और इन ब्रांचेस पे उन पॉइंट्स को मेंशन कर दो। समझ में आया? इन द सेम वे ऐसे ही सेकंड के लिए, फिर ऐसे ही थर्ड के लिए, फिर ऐसे ही फोर्थ के लिए, फिर ऐसे ही फिफ्थ के लिए। अब क्या हुआ, आप समझो करना क्या है, आपने डिफरेंट कलर से ये किया, राइट? अब ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम जब रिवीजन करते हैं नेचुरली, तो अभी तक हम करते आए, कैसे याद करते हैं, अपने बुक को बंद करते हैं और जो सारी चीजें थी उसको बोलने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं भूल जाते हैं तो वापस उसे चेक करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? इस मेथड को आज तक आपने प्रैक्टिस किया, ये बहुत अच्छा था, इसका रोल अभी खत्म हो रहा है। अब आपसे आपने नया मेथड सीख लो। मैं आपको एक बात बताऊं कि मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू द कॉलेज फैकल्टीज एंड मैनेजमेंट की वो इस तरह का सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि अप्लाई दीस कांसेप्ट्स, शायद आज अंदाजा नहीं होगा कि आप कितने बड़े रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इनके ऊपर ज्यादा काम नहीं हो रहा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज तक ऐसा सिखाया गया, इतने साल की स्कूलिंग हो गई नहीं ना? सोचो कितना टाइम आज तक आपने लगाया है रटने में। मैं किसी बच्चे को देखता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो बेचारे को कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया आधे घंटे में और उसको रटने के लिए उसको 2 घंटे लगे।
आप समझ रहे हो कितना टाइम खर्च हो रहा है उसमें? वो 2 घंटे में वो कितनी और एक्टिविटीज कर सकते। तो आप यू आर गोइंग टू सेव लॉट ऑफ योर टाइम और बहुत प्रोडक्टिव होने वाले। तो कैसे करना है समझो। आपने इसको ड्रॉ किया। अब नाउ अगर आंखें बंद करके आप कंफर्टेबल रहते हो तो आंखें बंद करके, आंखें खोल के रहते हो तो आंखें खोल के। नाउ सी योर कंटेंट इनसाइड योर माइंड। जैसे आपको यहाँ बैठ के अपने घर का रेफ्रिजरेटर दिखता है, इन द सेम वे आपको ये कंटेंट को आंखें बंद करके आपका ये मेमोरी का ग्राफ दिखना चाहिए। समझ रहे हो कैसे? आंखें बंद किया, देखा ओके दिस इज द सेंट्रल आइडिया विद दिस कलर। उसके बाद फर्स्ट ब्रांच यहाँ पे जा रही है। नाउ ओके उसमें ये चीज लिखी हुई है एंड दीस आर द 5 पॉइंट्स, इस कलर में यहाँ है। उसके बाद सेकंड वन, उसके बाद थर्ड वन। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप इसको अपने माइंड के अंदर रजिस्टर कर लेंगे, आपको रिवाइज करने के लिए क्या करने की जरूरत है? पूरे नोट्स को दोबारा नहीं पढ़ना है। क्या करना है? नोट्स को क्लोज करना है, आंखें बंद करनी है, अपने माइंड मैप को आपको चेक कर लेना है। और माइंड मैप में अगर कोई इमेज धुंधली नजर आ रही है यानी कि अनक्लियर है, तो नोट्स खोलना है, वहां से पढ़ना है और फिर कहां से वापस उसको कनेक्ट करना है, फिर से आंखें बंद करना है और अपने इमेजिनेशन में जाके जो मिसिंग था या जो डल था उसको क्या कर देना है? क्लियरली मेंशन कर देना है। एंड द एंटायर कंटेंट विल गो इनसाइड योर माइंड। क्योंकि अभी तक जो हम लर्निंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? आउटसाइड से लर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है? ये इनसाइड आउट है। ये क्या है? इनसाइड आउट। अभी देखो एक एक्टिविटी करेंगे, सारे अपनी फिंगर्स यहाँ रखेंगे, ठीक है ना? और अपने बगल वाले को बताएंगे इट इज इनसाइड आउट। बोलो इट इज इनसाइड आउट। अपने राइट साइड, दूसरे साइड वाली इट इज इनसाइड आउट। और मुझे भी बताएंगे जोर से इट इज इनसाइड आउट। आप समझ रहे हो? तो यू नीड टू रजिस्टर द थिंग्स इनसाइड योर माइंड और वहां से रिकॉल करना है। और जब आप ऐसा करोगे, आप खुद सोच के देखो, जो मैंने आपको टूल बताया है, अगर आपने इस तरीके से लर्न करने की कैपेबिलिटी और हैबिट डेवलप कर ली, आपको नहीं लगता कि आपकी चीजें आपको बहुत ज्यादा गहराई तक याद रहने वाली हैं? आप सोच के देखो, आपको एक 5 आवर्स का प्रेजेंटेशन देना है, यू विल रिक्वायर नो नोट्स। क्यों? क्योंकि हालांकि पूरी की पूरी बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स हैं कि नंबर्स को, डिजिट्स को कैसे लर्न करें। यू कैन गो टू माय वेबसाइट, में आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आप समझो कि अगर आप इस तरीके से करते हो, आपके पास कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, आपने नोट्स वहां रख दिए, यू हैव ऑल द कंटेंट्स आल्सो, सारे पॉइंट्स आपको पता है और आप सामने वाले से बात कर रहे हो क्योंकि खुली आंखों से आपके सामने आपका सेंट्रल आइडिया, फर्स्ट पॉइंट ये है, आपने उसके बारे में बात की, सेकंड पॉइंट ये है। सोच के देखो किसी कॉर्पोरेट में अगर आप इस तरीके से बात करते हो, व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इंप्रेशन यू आर गोइंग टू क्रिएट। समझ में आ रही बात? ये कितना पावरफुल है। देखो इट इज वेरी पावरफुल एंड इट इज यू हु कैन टेक रिस्पांसिबिलिटी कि मैं ये करूं, राइट? तो ये चीजें आप कर सकते हो। आपको बस इसकी हैबिट डालनी है। शुरू में थोड़ा अनईजी लगेगा, क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं है। जैसे अगर आप राइट हैंडर हैं और आप राइट हैंड से जब बात करते हैं तो पानी ऐसे डालते हैं, आज तो शावर से सब लोग डालते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई काम राइट हैंड से करते हैं, आप राइट हैंड से लिखते हैं, मैं आपको बोलूं लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो, तो शुरू में आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। लेकिन सपोज अगर ऐसा हो जाए कि उससे लिखने के कारण आपके रिजल्ट्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ जाए, तो थोड़ी देर बाद आपका माइंड क्या कर लेगा? लर्न कर लेगा कि लेफ्ट हैंड से कैसे लिखना है। इन द सेम वे हो सकता है अभी जब आप किसी कॉन्सेप्ट को इस मेमोरी टेक्निक के साथ कनेक्ट करो तो आपका माइंड बोले कि यार ये तो थोड़ा टफ लग रहा है, इससे आसान तो रट लेना था। समझ रहे हो? लेकिन अगर उसी समय आपने क्या किया, आपने रटने की बजाय ये मेथड को अप्लाई करना शुरू कर दिया, यू विल लर्न एंड डेवलप दिस कैपेबिलिटी। और जैसे ही आपने ये डेवलप कर लिया, आपने लर्न कर लिया, तो फिर क्या होने वाला है? वैसे ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं आपकी जिंदगी में। तो आपकी जिंदगी में बहुत मैसिव रिजल्ट्स, मैसिव चेंज आ सकता है इससे। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको माइंड एंड मेमोरी के बारे में बताया। मजा आया आज आप लोगों को? हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड? रियली एंजॉयड? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको बताऊं मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में कर रहे हो, यू आर बोर्न टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन। वो कैपेबिलिटीज आपके अंदर हैं, वो सारा पोटेंशियल आपके अंदर है, आपको उसको अनलॉक करना है। आपको अपने आप को लर्निंग के ट्रैक पे रखना है। मैं आपको बताऊं आप मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एसोसिएटेड, कनेक्टेड रह सकते हैं। यू कैन गो टू YouTube, वहां पे मेरा चैनल है प्रोग्राम योर माइंड या वेज स्पेस एनएलपी, आप लिखेंगे तो प्रोग्राम योर माइंड चैनल आ जाएगा। मोर देन 100+ वीडियोस आर देयर, राइट? और ये लाइफ के अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर है। कभी मैं मेमोरी के बारे में बात कर रहा हूं, कभी मैं लाइफ के सक्सेस के बारे में बात कर रहा हूं, कभी सेल्फ इमेज के बारे में बात कर रहा हूं। जब लास्ट टाइम आईटीएस कॉलेज में
वो रिकॉर्डिंग भी शायद वहां पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यू कैन स्टे कनेक्टेड, यू कैन गो टू माय वेबसाइट आल्सो, प्रोग्राम योर माइंड, आप सर्च करोगे गूगल पे, यू विल फाइंड इट। वो सारी चीजें जो इट इज ऑल अवेलेबल ओवर देयर। आप सिर्फ एक ही इंसान है जो डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी में मैसिव चेंज आना है या आपको एवरेज रहना है। आप क्या चाहते हो, हाई सक्सेस चाहते हो या एवरेज रहना चाहते हो? कितने लोग हाई सक्सेसफुल होना चाहते हो? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। आप बिल्कुल ये कर सकते हो, स्टार्ट लर्निंग दोस थिंग्स जो आपकी स्किल्स को एनहांस करें, जो आपकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करें। राइट डायरेक्शन की चीजों, इंटरनेट पे आज दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है। इट इज योर चॉइस व्हिच विल डिसाइड यू विल रिमेन द सेम पर्सन और यू विल बिकम डिफरेंट, राइट? सो विद दिस आई हैव वंडरफुल विशेस फॉर यू। मैं चाहता हूं आप सब अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से